Hello students, welcome back to online session. See, in today's session we are going to start with joint stock company. अभी joint stock company it came into existence due to limitations of other form of business. See, basically joint stock company existence में आया है due to limitations of other form of business. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, उनको फाइनेंशियल हमेशा फाइनेंस की उनको हमेशा शॉर्टेज रही है, स्टेबिलिटी भी नहीं है उसमें। देन पार्टनरशिप फर्म में भी सेम प्रॉब्लम है, फाइनेंस की शॉर्टेज रही है। तो इन सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस में आया जहाँ पे फंड्स जो है वो जनरल पब्लिक से इन्होंने कलेक्ट किया। A joint stock company, let's start with the meaning of joint stock company. A joint stock company is a voluntary association of person who generally contribute capital. See, joint stock company है, एक voluntary association है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो जनरली कंट्रीब्यूट करते हैं। दे कैरी ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस विच इज स्टैब्लिश बाय लॉ। जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं जिसको जो जो इसे स्टैब्लिश किसने किया है, जिसे परमिट किसने किया है, लॉ ने किया है। द टोटल कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल. इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर्स. Every member holds some share. These members are called shareholder. In India, every joint stock company is registered as per Companies Act 2013. See, let's see the meaning one more time. A joint stock company is a voluntary association of persons who generally contribute capital. They carry on a particular type of business which is established by law. The total capital of joint stock company is known as share capital. The share capital है, it is divided into small unit called share. Every member holds some share. These member are called shareholder. See, joint stock company सबसे पहला पॉइंट है, joint stock company एक voluntary association है, voluntary association of person, voluntary group of person who generally contribute capital. They carry on a particular business which is established by law. The total capital, जितना भी फंड कलेक्ट होता है, जितना भी कैपिटल कलेक्ट होता है, इज नोन एज शेयर कैपिटल. और जो शेयर कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होता है विच इज़ कॉल्ड शेयर. और जो लोग वो शेयर परचेज करते हैं दे आर नोन एज मेंबर, राइट. इट इज़ डिवाइड इन स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर्स. एवरी मेंबर होल्ड सम शेयर. जितने भी मेंबर हैं वो सब शेयर्स उनके पास होता ही है. और जितने भी लोग शेयर परचेज करते हैं दे आर नोन एज शेयर होल्डर. जो लोग ये शेयर परचेज करते हैं वो लोग उनको क्या बुलाता है, शेयर होल्डर. In India, every joint stock company is registered as per Companies Act 2013. Now, definition of joint stock company. A joint stock company is a voluntary association of individual for profit having capital divided into transferable share, the ownership of which is conditioned on membership. ओनरशिप किसके बेसिस पे है, मेंबरशिप के बेसिस पे है. ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है which aim is to earn profit. It is having capital divided into shares or ownership of which is conditioned on membership. So दूसरा definition है, a company is a person artificially visible, intangible and exist only in the eyes of law. Being more creature of law, it possesses only the properties which has the charter of it create and confer upon it, either expressly as incidentally it is very existence. According to Companies Act Section 220, the term company to mean a company incorporated under Companies Act 2013 or any other previous law. See, any of the from this three definition, any definition you can prepare, but as per my suggestion you can prepare this Professor at LH Haney definition. Now see, according to the definition के हिसाब से कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड विच एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. जो सिर्फ कंपनी के आइज में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है. मतलब उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है बट इट एग्जिस्ट. वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से वो बाय लॉ वो क्रिएट हुआ है एंड इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ. नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट वन इज वॉलंटरी एसोसिएशन. Person of any caste, religion can become the member of joint stock company. There is no restriction regarding number of share purchased by one person. After death, share of any shareholder are transferred to his nominee. There is no restriction on transfer of share. See, person of any caste, religion can become member of joint stock company. कोई भी कास्ट रिलीजन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. किसी भी कास्ट रिलीजन कोई भी पर्सन यहाँ पे मेंबर बन सकता है.
देयर इज़ नो, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर परचेस करने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहो उतना शेयर आप परचेस कर सकते हो। आफ्टर डेथ ऑफ शेयर होल्डर, अगर जो शेयर होल्डर है उसकी अगर डेथ होती है तो उसका जो शेयर्स है इट विल गेट ट्रांसफर टू हिज नॉमिनी, वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और शेयर्स पे कोई, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। An application in prescribed format must be submitted to registrar of company. Necessary registration fees are paid by promoter. A certificate of registration, incorporation certificate, is issued by company after registration. A private limited company can immediately start its business after getting incorporate certificate. A public limited company must obtain certificate of commencement of business, trading certificate to start its business. फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। नेसेसरी फीस है, इट हैज़ टू बी पेड बाय द प्रमोटर। अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ इशूड टू द कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपने अगर जब रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। अभी जो प्राइवेट कंपनी है आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे कैन स्टार्ट दैट बिजनेस, बट जो पब्लिक कंपनी है उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद ही वो लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट मीन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो बिजनेस रजिस्टर होने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन दे कैन स्टार्ट दैट बिजनेस, बट जो पब्लिक कंपनी है दे हैव टू वेट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, दैट इज ट्रेडिंग सर्टिफिकेट टू स्टार्ट इट बिजनेस। अभी नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस। The address of registered office of a company is mentioned in memorandum of association. All the important document of the company are kept in registered office. Registration of shareholder, annual report, minutes book, memorandum and article of association, prospectus, statutory report, etc. से जो रजिस्टर्ड, जो एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी वो मेंशन होता है मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो जो कंपनी का परमानेंट एड्रेस होता है उससे रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है। सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी केप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, एनुअल रिपोर्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, इट हैज़ टू बी केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे वो पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। मतलब जो कंपनी है इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी। जो कंपनी है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, जिसको किसने क्रिएट किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। तो कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंपनी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी किसी से लोन ले सकती है, कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। देयरफॉर ओनली लॉ कैन क्रिएट जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ओनली लॉ कैन वाइंड अप। जो लॉ है सिर्फ लॉ जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्रिएट कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को वाइंड अप भी कर सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, हम किसी से लोन ले सकते हैं, किसी को पैसा किसी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेम लाइक एस अस जो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, किसी को एम्प्लॉय हायर कर सकता है, लोन ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जो ऐसा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को सिर्फ लॉ क्रिएट कर सकती है एंड सिर्फ लॉ ही उसे क्या टर्मिनेट वाइंड अप भी कर सकती है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल स्टेटस। देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो उसका खुद का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, उसका खुद का लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है जो उसके मेंबर से डिफरेंट है। जब मैंने आपको सोल ट्रेडिंग के वक्त बारे में बताया था, सोल ट्रेडर डज नॉट एन्जॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर सोल ट्रेडिंग जो सोल ट्रेडर है उसको अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए अगर उसको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। तो
आइज़ ऑफ लॉ मतलब गवर्नमेंट की आइज़ में जो सोल ट्रेडर है उसका बिजनेस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर सोल ट्रेडर को अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए उसको अकाउंट ओपन करना है तो सोल ट्रेडर खुद के नाम पे ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसका सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। बट यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, it is a separate legal existence of joint stock, there is a separate legal existence of joint stock company, it is a separate legal entity apart from its member। मतलब अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो अपने कंपनी के नाम पे भी उसी कंपनी के नाम पे ओपन होगा। तो यहाँ पे उसका खुद का सेपरेट क्या है, आइडेंटिटी है, जो जो इसे कैसे मिला है, जो इसे रजिस्ट्रेशन से मिला है। नेक्स्ट है कॉमन सील। A company is an artificial person. It does not have a physical existence like human being. Therefore, it is necessary to make provision for signature of company. See, company जो है वो artificial person है, वो लेकिन वो नेचुरल पर्सन की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी का जो सिग्नेचर, कंपनी अभी नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो खुद से साइन नहीं कर सकता। तो इट इज़ नेसेसरी टू, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ प्रोविजन फॉर सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ कॉमन सील, जो कंपनी का सिग्नेचर की तरह काम करता है। कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील अटेस्ट होता है, बिकॉज वो कंपनी का क्या है, सिग्नेचर है। जो सिग्नेचर है कंपनी का, जो कॉमन सील है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देयरफॉर अ सील इज़ केप्ट, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉमन सील, बिकॉज अगर वो किसी गलत डॉक्यूमेंट पे अगर वो अटेस्ट होता है तो कंपनी को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर अ सील इज केप्ट इन अ कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। इट इज़ affixed ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी एंड बाय मिनिमम 2 डायरेक्टर। ये जो सील है, कॉमन सील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी के सेफ कस्टडी में रखा जाता है सेक्रेटरी के। ये कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में ये फिक्स होता है, मतलब इसको अटेस्ट किया जाता है, ये फिक्स किया जाता है। बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन, जो भी डॉक्यूमेंट पे इसको अटेस्ट किया गया है, इट हैज़ टू बी साइन बाय सेक्रेटरी एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर। So in today's session we have done 5 points, that is 5 feature of joint stock company. The remaining part we will do in the next lecture, and we will also do the revision of feature. With this I would like to end this session. Thank you so much.